Okay, so let us begin with our DAX, where we already have left out with our different operations and functions that we are going to learn, isn't it? Basically, what we are going to look over here is documentation from where we will get a reference that what particular function should be used and what type of scenario should be there where I'll be using a particular function, isn't it? So how you will be deciding, how you will be understanding based on the scenario, okay, and what is the references and where should I get the documentation from where I'll be learning that particular thing. Okay, so we are going to look over there. So it's nothing that I have created over here. This is from Microsoft itself, from Power BI documentation itself. So you will be able to understand each and everything, how to provide parameters which are required to work with those functions. Okay, you will have a proper references over here. Okay, so from where I'm taking this reference is nothing from anywhere here and there like that. It's from Microsoft itself. Okay, so I'll just share the link in our WhatsApp group like this. So DAX analysis expressions which are available as a references have been provided over here in our group. Okay, so you can anyway go over there and you can look over different functions which are available. Now, if you look over here, it's not only 1, 2, 3. There are lots of different functions which we need to understand. Now, is it possible to go through all this? No, it is not pretty much possible. Why? It's a heading. It's not particular function. If you open this or if you click on any of the function, you will see that it is containing lots of other functions. This is a name of a function. This is under aggregate function. These are containing this many number of functions. So to go through each and every of them, it's very difficult and probably it's a really um, uh, impossible like situation. So we aren't going through each and everything, but yes, focusing on that what are the frequent functions which we normally use and which are normally being asked in our interviews and which are being asked to comply with in interviews. Okay, so we'll be focusing on that. In that scenario, we will have this aggregate function, date and time functions, filter functions, information functions, logical functions, math and trigonometric functions. Again, trigonometry is not required, but mathematical functions are there. And I hope you have also seen this image that I have shared in PDF format over here. Okay, so it's a small reference that we'll be looking over here, now how this works and why it is important. Because as an Power BI role, as an BI role, uh, you have to pursue with the knowledge. You have to get through all those functions which are mentioned over here, at least minimum way. You have to go through this. Okay, इतना आपको पता होना ही चाहिए इसको यूज कैसे करते हैं कैसे करना है. इट्स अ मिनिमम. इससे ज्यादा आपको चाहिए, यस आप ले सकते हो, कोई रोकेगा नहीं. कहाँ से लोगे? अगेन उसी के लिए आपको मैंने ये रेफरेंस दिया है लिंक. यहाँ से आप उसे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. ओके, so let us apply this, isn't it? Data set लेंगे, data set में हम इसे अप्लाई करते हैं, कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एनालिसिस सॉल्व करते हैं ताकि समझ सके कि हम कहाँ पे और कैसे इसे यूज किया जा सकता है. नाउ कभी भी आपने देखा होगा whenever we are working on Power BI, okay, whenever we are working on a Power BI, हम जब पीबीआई पे काम करते हैं, बिकॉज पीबीआई क्या है? इट्स अ विजुअलाइजेशन टूल, इट्स अ बीआई टूल. We always say it as a business intelligence tools, which is basically providing us an insight, है ना, visual through या फिर किसी भी तरह. You can get the answers or you can solve the queries based on two different methods. जैसे मैंने आपको कहा, एक तो है visuals, ग्राफ्स जिसे हम कहते हैं, और एक होता है DAX आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए. ओके, तो ये दो चीजों के लिए यूज करना है. DAX के थ्रू भी कर सकते हो एंड विदाउट DAX यूजिंग विजुअल्स भी कर सकते हो. ओके, तो अभी कैसे वर्कआउट होता है, ये कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे आपको करना पड़ता है, कहाँ जरूरत नहीं पड़ता है, कौन सा बेटर वे, हम उसे भी थोड़ा समझ के लेंगे. ओके, सो फॉर एग्जांपल के लिए अभी आपको यहाँ पे लेके आता हूँ एक बेसिक एग्रीगेशन फंक्शन जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, उसको मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ. जैसे अगर मुझे कोई पूछता है
कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स विच इज बीन डन टिल नाउ। ओके, आपको देखो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक डेटा सेट का जिप डेटा सेट करके भेजा है, कॉम्प्रेस करके, उसमें ये सब के सब डेटा अवेलेबल है। ओके, ये सब के सब जितने भी डेटा यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, कस्टमर टेबल, डेटा टेबल, प्रोडक्ट्स है, सेल्स, ये सब डेटा सेट वहाँ पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ वहां से उसको लोड करना है। ओके, अंदर में CSV फॉर्मेट में है, और इवन पीडीएफ में जो इमेज मैंने क्रिएट किया, पीडीएफ में जो क्रिएट किया था, जो भी वहाँ पे कंप्रेस करके रख रखा है आपके रेफरेंसेस के लिए। सो यू कैन हैव दैट डेटा। अभी सब देख लीजिए, बाद में प्रैक्टिस कीजिए। सो ओवर हियर आपको पूछा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स अभी तक कितना हुआ है। सो ऑब्वियसली डेटा कहाँ पे है, सेल्स के टेबल में आपके यहाँ पे है। ओके, आप टेबल में आते हो, टेबल व्यू पे आप जब यहाँ पे आते हो सेल्स में, तो आपको पता चलता है कि जो ये सेल्स का अमाउंट है, ये सेल्स का अमाउंट हमें पूछा गया है कि इसका एग्रीगेट, एग्रीगेट में कौन सा, सम, टोटल मतलब सम। ओके, तो इसका हमें आंसर पूछा गया है, मतलब क्या है, ये ऐड करते करते सब वैल्यू को ऐड करना है और हमें आंसर देना है इसका टोटल क्या आता है। तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर मेजर। हमने क्या किया, एक मेजर क्रिएट कर दिया। विद दैट मेजर हमने क्या किया, फिर उसको एक नाम दे देते हैं, उसका नाम है टोटल सेल्स, सेल्स सॉरी, टोटल सेल्स, क्योंकि सिंबल से पता चल जाता है। ओके, टोटल सेल्स। अब उस टोटल सेल्स का क्या किया हमने, हमने क्या किया, यहाँ पे कार्ड क्रिएट किया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो आपको पता चलेगा यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड वन कार्ड, we have taken one reference of a card over here, and in that card there is a fields which we have put, which we have filled with that field, that field with respect to this total sales measure। आपको एक वैल्यू यहाँ पे आ गई। नाउ इस तरह के कैलकुलेशंस के लिए, फिर इस तरह के विजुअल्स के लिए, ओके, क्या डैक्स जरूरी है? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, टू बी फ्रैंकली अगर मैं कहूँ तो जरूरी भी नहीं है। यहाँ प्रैक्टिस के लिए ठीक है कि आपको उस फंक्शन को कैसे यूज करना है, यहाँ तक ठीक है। बट अगेन, क्या ये जरूरी है? नॉट रिक्वायर्ड। देखो आप बेसिकली विदाउट यूजिंग ऑल्सो, आप एक इस पे क्लिक कीजिए, आपका यहाँ पे एक कार्ड क्रिएट हो जाएगा। जो ये सम ऑफ सेल्स अमाउंट है, इसको यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, ये आपका वैल्यू ऐसे ही बाय डिफॉल्ट सम के इसमें ही आ रहा है। ओके, नाउ इसीलिए आपको कंसिडर ये करना है कि कौन से समय पे शुड आई गो, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि कुछ क्वेरीज होती है जो विदाउट डैक्स के भी सॉल्व हो जाती है डायरेक्टली विजुअल्स के थ्रू, बैकग्राउंड में। ओके, बैकग्राउंड में तो डैक्स रन हो ही रहा है, आपने जैसे कल देखा था परफॉर्मेंस एनालाइजर पे, ये डैक्स वर्कआउट होता ही है। तो जहां जहां पे सिंपल क्वेरीज होती है, जैसे टोटल सम ऑफ सेल्स है, एवरेज क्वांटिटी है, क्वांटिटी, यूनिक कस्टमर आईडी है, फिर उनके काउंट चाहिए, आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक मेजर क्रिएट करके रखना है, यहाँ पे आपको विजुअल्स के थ्रू मिल जाएगा। तो फिर कब डैक्स यूज करना है? डैक्स यूज तब करना है जब आपको कोई बार बार पूछेगा वो वैल्यू, या फिर आपको उस वैल्यू का कहीं यूज होने वाला है आगे जाके, मतलब आपको वैल्यू कहीं सेव करना है, तब जाके आपको वहां पे मेजर्स में आना है। अदरवाइज सेव नहीं करना है, वो वैल्यू सिर्फ दिखाने के लिए है, डोंट सेव इट। क्योंकि देखो, जब आप कहोगे कि सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स क्या है, पर्टिकुलर एक वैल्यू ही सेव होगा, वो x1, वही वैल्यू सेव होगा। जब आप बोलोगे कि एवरेज, तो एवरेज भी क्या होगा, पर्टिकुलर एक ही वैल्यू सेव होगा, जो होगा x2। मतलब ये दोनों, आप जब देखोगे दोनों को, इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो दोनों वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट रहेगी। ऑब्वियसली एवरेज अलग है, से सम अलग है ना, अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये सेव कर देता हूं, अगर मैं ये सेव कर देता हूं, तो इसमें हमेशा एक वैल्यू सेव हो जाएगा, एक वैल्यू से रेफर होगा, कोई भी एक वैल्यू से। वेरा जब आप विजुअल यहाँ पे करते हो, विजुअल क्रिएट करते हो, मतलब क्या है, मैं इसमें जाके, जैसे मैंने आपको अभी किया था क्रिएट, देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे विजुअल क्रिएट करता हूँ मैं, और यहाँ पे टोटल समोसा उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू हो, ये वैल्यू जो सेम आ रही है, ओके, मैं इसमें जाके चेंज करने को कह कर सकता हूँ। जैसे मैं, अगर कोई पूछता है कि भाई हाँ, ये जो सम ऑफ सेल्स का टोटल आया ना, अच्छा इसका मुझे एवरेज दिखा दो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आऊंगा, देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज this total sum of sale value is stored with specific value. It is stored with specific number. I cannot change, I cannot get that aggregate, because a function is used over here. I cannot simply switch this function. Whereas जब आप विजुअल यूज करते हो लाइक दिस, यू हैव द ऑप्शंस, सम में जाके यहाँ पे जो आपको एग्रीगेट फंक्शन चाहिए वो चूज करके चेंज कर सकते हो। सो रिमेंबर, आपको अगर वो वैल्यू सेव करना है, कहीं आगे जाके यूज करना है, कुछ रेफरेंसेस के लिए चाहिए, या फिर मुझे उसका कोई यूटिलाइजेशन करना है, तो वहां पे डैक्स में आके सेव कीजिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे यूज किया, अभी टोटल सम ऑफ सेल्स क्या है, ये वैल्यू, जैसे आपने कल देखा होगा, हमने गेज करके एक विजुअल बनाया था, जहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू की जरूरत थी वहां पे, तो वहां पे यस आपको सेव करके रखना है, वो
मेजर्स आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या है बेसिक, बहुत बेसिक जो एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जितने भी हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं यूज करके हम कर सकते हैं। अब इसके आगे फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन बेस में कुछ क्वेश्चन है, जैसे कुछ कंडीशन बेस में क्वेश्चन ये है देखो आपके सामने, वेयर हमें अगर से ऐसा पूछा गया है कि क्रिएट अ मेजर ड्यू टू क्लास फॉर क्लासिफिकेशन, क्रिएट अ मेजर टू क्लासिफाई एज अ क्लास वेयर हाई एंड अबव, वेयर हाई इज अबव $500 एंड लो इफ लेस। मतलब अगर किसी का भी सेल्स, कहीं का भी सेल्स आपके कॉलम है, अगर $500 के ऊपर अगर सेल्स होता है, अबव नॉट इक्वल टू, अबव सेल्स होता है तो उसे कंसिडर करेंगे हम हाई। बट इफ 500 या 500 के नीचे होता है, क्योंकि अदरवाइज कर जाए ना लोग, तो उसके नीचे। यस बोलिए, समवन इज ट्राइंग टू स्पीक समथिंग। हाँ बोलिए। हेलो। यस श्याम बोलिए। मैं कुछ नहीं सर। ओके। अच्छा कुछ क्वेरी तो पूछे, ओके, डोंट हेजिटेट फॉर दैट, मेक श्योर कि आप पूछ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। ना जैसे क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी क्या दिया है कि भाई आपको पूछा गया है कि अगर किसी का भी सेल्स 500 के अबव है और 500 के नीचे है तो उसे कैटेगराइज करो ना। नॉर्मली क्या है देखो, हमारा सम ऑफ सेल्स का जो सेल, ये देखिए यहाँ पे आओगे, ये जो सेल्स का हमारा कॉलम है सेल्स अमाउंट का, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो एक 875 है, कहीं 582 है, हाँ 42 है, कहीं पे 103 है, कहीं पे 91 है ना, 91 है, कहीं पे 136 है। मतलब क्या है, हर एक बार हर एक रिकॉर्ड में सेल्स अलग अलग हुआ है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर 500 के ऊपर है तो हाई होना चाहिए, अगर 500 के नीचे है तो उसे लो सेल्स कंसिडर करना है। इन दिस सिनेरियो, इस तरह के केसेस में जहां पे आपको, अब यहाँ पे क्या चाहिए देखो, आपको ये क्रिएट करना है विथ रेफरेंस टू दिस वैल्यू, इज इट हाई और लो, एक कॉलम बनाना है, क्योंकि ये रिकॉर्ड, हर एक का रिकॉर्ड जो आएगा डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, हम मेजर पर्टिकुलर इस पे वर्क नहीं कर सकते। ओके ना, उस केस में क्या करेंगे हम, फॉर दैट पर्पस अगेन उसमें भी एक ऑप्शन है, जैसे अगर आपको सिर्फ दिखाना है, सिर्फ चेक करना है, तो वहां पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, सेल्स कैटेगरी करके क्रिएट कर लेना है, जहां पे सिर्फ चेक करना है ना हमें। तो चेक करने के लिए इफ, अब इफ फंक्शन कैसे वर्क होता है, इफ आपका जो भी क्राइटेरिया है वो दे दो, जो भी क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरिया लिख दिया था मैं, क्राइटेरिया जो भी आपने दिया है, अगर ये क्राइटेरिया जो आपने दिया है इफ इट्स ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो इसके रिलेटेड में जो भी आपका लेट्स से सेंटेंस है या फिर जो भी आपका एक पर्टिकुलर आउटपुट है वो आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर ये सही नहीं होता है, एल्स, अगर ये क्राइटेरिया सही नहीं हो पाता है या फिर ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाएगा, वहां से जंप करके एल्स पार्ट, उसका जो आउटपुट है वो आपको रिटर्न करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल पढ़ो, जैसे हमारे केस में है, अगर एक रिकॉर्ड में यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड में अगर 300 ऐसे लिख के आया, आपने क्राइटेरिया क्या दिया है, हमने देखो अगर सेल्स के टेबल में सेल्स अमाउंट 500 से ज्यादा है, मतलब पहला क्राइटेरिया क्या है, वो सेल्स अमाउंट में इस सेल में जाके चेक करेगा कि ये जो सेल की वैल्यू है क्या ये 500 से ज्यादा है, तो यहाँ पे चेक होगा कंडीशन बेसिस में, इस तरह से चेक होगा। इफ इट्स ट्रू, इफ इट इज ट्रू, तो क्या होगा आपको, हाई, बिकॉज पहला है नहीं है, कभी भी जो पहला लिखते हो क्या है, अगर ट्रू है तो, ये अगर फॉल्स है तो, ये अगर ट्रू है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स हो तो अगर ट्रू है तो क्या आना चाहिए, इट शुड रिफ्लेक्ट एज हाई, अगर फॉल्स है तो लो। अब यहाँ पे कैसे वर्कआउट होगा, इट विल कंपेयर दिस, ये क्राइटेरिया आपका है, आपने क्योंकि फर्स्ट एंट्री क्या है, फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा 300 का है, तो ये क्राइटेरिया चेक हो रहा है, इज इट ट्रू, नो इट्स नॉट ट्रू। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू हाई एज एन आउटपुट, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू हाई एज एन आउटपुट, वो क्या करता है, लो आउटपुट दे देता है, क्योंकि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ ही नहीं है। तो जो ट्रू वाला है, जो फर्स्ट आपका क्राइटेरिया है, जैसे इफ में है ना, अगर हमारा पहला क्राइटेरिया, अगर ट्रू वाला क्राइटेरिया अगर ये सेटिस्फाई होता, तो जो इसका आउटपुट है, आउटपुट क्या है, हाई, ये मैं दे देता आउटपुट। बट सिंस
दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या होगा, वो यहां से जंप करते हुए एल्स पार्ट होता है ना, जैसे हम कहते हैं अगर ये हुआ तो हम करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो हम वो करेंगे, लाइक दैट। सो अगर अब क्या हुआ यहाँ पे, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ मतलब क्या हुआ, ये क्राइटेरिया एल्स पार्ट का क्राइटेरिया सही हो गया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा लो, ये वाला आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से इफ एल्स का वर्कआउट होता है। ओके, दोनों में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई होता है तो उसका आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपली उसका आउटपुट सीधे सीधे आपको दिखा दिया जाएगा। लाइक दिस इट वर्क्स। ओके, नाउ ये क्या है आपका, आपने क्या किया, एक सेल्स कैटेगरी में एक आपका पर्टिकुलर आपने मेजर क्रिएट कर दिया, जहां पे सिर्फ चेक होगा कि जो भी वैल्यू है वो हाई है या लो है, सिर्फ चेकिंग करने के लिए उतना। कैसे क्रिएट करोगे उसके लिए, देखो कभी भी मेजर हम क्रिएट करते हैं, इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, और क्या करना है इसे, अच्छा ये सॉरी, यहाँ से कंट्रोल सी मतलब ये कंट्रोल सी नहीं, बेसिकली आपको कभी मेजर क्रिएट करने के लिए जहां सेल्स है उस टेबल में जिसके ऊपर आपको इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज सेल्स करके अमाउंट उस पर हम करना चाहते हैं, तो आई क्रिएट यू हियर न्यू मेजर। ये मेजर आ गया, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ लाइक दिस, थोड़ा सा। ओके, थोड़ा जूम करता हूँ लाइक दिस। देखो सेल्स कैटेगरी करके आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, सेल्स कैटेगरी। ओके, इस तरह से आपका क्रिएट हो गया। नाउ देखो क्या ये लग चुका, मतलब क्या ये वर्क कर रहा है, ये चेक करते हैं। ओके, ये डेटा अपना आ गया है, इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हाई पे और ये लो पे। आई होप आपको दिख रहा है। ओके, तो फोकस करता हूँ थोड़ा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसका जो फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। वैल्यूज 18 कर देते हैं ताकि हम रीड कर सकें। हाँ, अब ठीक है। हम्म, क्या किया मैंने अभी, देखो आपको दिखा देता हूँ कैसे किया हमने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक टेबल क्रिएट किया है, टेबल। अच्छा, टेबल क्यों, ताकि हम देख सके ना कि हमारा मेजर काम कर रहा है कि नहीं। ओके, डेटा स्टार्टेड और सॉरी कौन है बंदा ये? क्या होता है इसका? हाँ, तो अभी ये जो चार्ट में हमें क्या करना है, विल ड्रैग अवर सेल्स अमाउंट, ये आ गया सेल्स अमाउंट, और उस पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जो अपना हमने मेजर बनाया था उसको मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, सेल्स कैटेगरी। ये क्या बोलता है, ऑब्वियसली 500 के ऊपर ही है ये, 4,91,167 रुपए जो है, ये ऑब्वियसली हाई, 500 के ऊपर ये तो हाई दिखाएगा। बट क्या मुझे टोटल पे चाहिए था, नहीं, आई डोंट वांट, व्हाट आई वांट इज दैट फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा डेटा में, डेटा के ऑप्शन में जहाँ पे सम है, वहां पे कह दूंगा भाई आप समराइज मत करो। ओके, उसे समराइज ना करो। देखो ये हर एक वैल्यू पे ऐसे वर्क होगा, हर एक वैल्यू पे लाइक दिस। सो हाई पे
अगर 500 के अबव है तो, और 500 के अगर नीचे है, इस तरह से देखोगे आप तो ये इस तरह से आएगा, ये हाई और ये लो। ओके, इस तरह से आप विजुअल क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये मेथड है आपको मेजर अप्लाई करने के लिए। लेकिन डेटा ये जो डेटा आपके पास में, ये जो कॉलम है हाई लो का कॉलम कॉलम ओके, जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं एक कॉलम, एक क्लस्टर्ड कॉलम क्रिएट करूँ इस तरह से, यहाँ पे सेल्स अमाउंट आ जाए और वहां पे मेरा ये मेजर काम करे। नहीं बाबा, यहाँ पे देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं कहीं पे भी एक मतलब ऑब्वियसली देखो, ये कॉलम है 0.5, जितने भी टोटल सम ऑफ सेल्स का वैल्यू है, टोटल सम ऑफ सेल्स का वैल्यू है वो आपको बता रहा है यहाँ पे कि भाई टोटल अमाउंट जो सेल्स का है ये वैल्यू है। उसका मैं वैल्यू आपको डेटा लेवल ओके दिखा देता हूँ, जिसमें कि इसका थोड़ा हम फॉन्ट बढ़ा देते हैं ताकि रीड कर सके। 0.49 इज टोटल ओवर 49, 4 लाख 49 लाख समथिंग जो भी है अपना टोटल सेल्स हुआ है, टोटल सेल्स। मगर ये जो कैट, क्योंकि ये देखो ये जो है कॉलम, ये जो मेजर है, ये मेजर क्या है, इट्स नॉट अ मेजर, इट्स अ कॉलम ना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर मैं कभी मेजर ऐड करना चाहूंगा, इफ आई वांट टू पिक दिस कैटेगरी एंड इफ आई वांट टू पुट, वो कभी नहीं लेगा। क्यों? एक सिंगल वैल्यू है, वो सिर्फ हाई लो के कंसेप्ट में यहाँ पे बता रहा है, वो यहाँ पे इनपुट नहीं कर, हम इस चार्ट पे इनपुट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉलम ही बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कॉलम ही बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका मतलब, हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, सम ऑफ सेल्स के यहाँ पे, बेस्ड ऑन सेल्स, इस जो कॉलम है इस पे आके यहाँ पे हमको क्रिएट करना पड़ेगा न्यू कॉलम। वो फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए। ओके, और फिजिकल यूज करने के लिए क्या है, अगेन इफ एल्स, बट इंस्टेड ऑफ मेजर यहाँ पे हमने कॉलम क्रिएट किया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंपली यूजिंग टू ऑफ देम, कंडीशन कॉल, अब हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंपली टू, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसे कॉम्प्लेक्स करते हैं, 3 में कर देते हैं, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया, हमें 3 में करना है इस तरह से। नेक्स्ट वाला उस पे करते हैं, चलो। सो व्हाट वी विल डू इज दैट, बेस्ड ऑन दिस, अभी कंडीशन चेंज हुआ, जहाँ पे हमको क्या करना है, हाई वैल्यू कंडीशन है कि अगर 1000 के ऊपर है, मीडियम अगर 500 और 1000 के बीच में है, लो अगर 500 के नीचे है। तो इफ दैट इज गिवन द सिनेरियो, तो अब कैसे करेंगे, ओके ना। इसको स्विच से भी कर सकते हैं अगेन, इसको मैं मीडियम दो ना। हम्म, पहले ईफ से करते हैं नेस्टेड, फिर आपको मैं स्विच पे लेके जाता हूँ ताकि आपको स्विच फंक्शन पे इंट्रोड्यूस करा सकूं। ओके, गेट बैक टू हियर, सेल्स अमाउंट पे आता हूँ, न्यू कॉलम पे क्रिएट करता हूँ, ये कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसे मैं कर देता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ इस तरह से, इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पे प्रॉपरली, इसको इसके अंदर लिखा है, इसको यहाँ ठीक है, लाइक दिस। ओके, कस्टमर नेम, सॉरी कस्टमर वैल्यू। ओके, कस्टमर वैल्यू क्या है, ये आपका एक कॉलम का नाम है, ये यहाँ पे जो क्रिएट होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो इफ, अब बेसिकली होता क्या है जब हम इफ एल्स यूज करते हैं, इफ का क्या होता है, एक आपका कंडीशन होता है, अगर ये सही होता है तो आपका उसका आउटपुट क्या है, अगर ये सही नहीं होता है तो यहां से जंप करते हुए कहा हो एल्स पार्ट में चला जाता है। ओके, तो उसका क्या आउटपुट है, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे दो में नहीं है, जैसे हाई और लो था, तो क्या होता था, अगर हाई होता तो हाई हो जाता, अगर उसके लो होता तो लो हो जाता। बट यहाँ पे दो के बजाय भी तीसरा है, तो यहाँ पे पार्ट क्या आता है आपको, एल्सिफ। एल्सिफ मतलब ये दोनों का साथ में काम नहीं करेगा, आपको एक और ऐड करना पड़ेगा। एक तो मेथड है एल्सिफ यूटिलाइज, उसे ऐड कीजिए। दूसरा मेथड जो हम यूज कर रहे हैं विच इज नेस्टेड, नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ मतलब क्या होता है, एक इफ के अंदर में आप एक और इफ को इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे सामने हमने किया है, देखो
अब जैसे आपको मैंने कहा था इफ एल्स का पार्ट क्या होता है, इफ या तो एल्स, इफ या तो एल्स, मतलब ये ए प्लान नहीं तो फिर बी प्लान। अब उसके अंदर में हम एक और ऐड कैसे करेंगे, सो अगर ये प्लान हमारा सही होता है, इफ दिस इज प्लान इज ओके, तो ये एग्जीक्यूट होकर आपका आउटपुट आ जाए, दैट इज आवर मोटो। अगर ये नहीं होता है, एल्स मतलब मैं कहां पे जा रहा हूं, एल्स पार्ट में जा रहा हूं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एल्स पार्ट, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और इफ ऐड कर दूंगा एल्स पे जाने के बजाय। जहां एल्स के पोर्शन, यहाँ पे एल्स ऐड होने वाला है, वहां पे एक और इफ कर दूंगा। तो क्या होगा, वहां पे ये एल्स पार्ट क्या करेगा, ये फिर से जैसे इफ में आप कंडीशन दे रहे हो, वहां पे भी कंडीशन चेक होगा, वहां पे भी कंडीशन चेक होगा और उसके बेसिस में आपको आउटपुट मिलेगा। सो इट्स नॉट एल्स, इफ के अंदर में एक इफ एल्स, लाइक दैट। ओके, सो कैसे रीड करना है, देखो सम ऑफ सेल्स, अगेन सम ऑफ सेल्स में जो सेल्स का अमाउंट है ये तो हमेशा सेम रहेगा। इफ दैट इज ग्रेटर देन 1000, क्या होगा, अगर ये ट्रू होगा तो हाई वैल्यू आ जाएगी। जहां पे एल्स पार्ट था, जहां पे हमने लो के लिए लिखा था एल्स पार्ट, एल्स पार्ट पे, और हमेशा याद रखना आपको जो भी नेस्टेड इफ वगैरह ऐड करना है, इट हैज टू बी एडेड ऑन एल्स पार्ट ओनली, एल्स जहां पे होता है उसी पे ऐड करना। तो इफ सम ऑफ सेल्स अगेन विद गोस, इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो क्या कहेंगे उसे, हम मीडियम कहेंगे। ओके, मीडियम। एंड अगर ये लो वैल्यू है, अगेन यहाँ पे आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, इसे डायरेक्टली लेस देन भी कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट आपका हो सकता है शायद सोचने में, कि जब ये 500 है एंड व्हेन यू आर सेइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, सो इफ दिस वैल्यू इज 5000, okay, if this value is 5000, it is true because your value is greater than 500, true, it is not equal to 500, very true। तो ऐसे केस में ये हाई वैल्यू के बजाय मीडियम पे भी आना चाहिए, बट इट डज नॉट हैपन लाइक दैट, इट हैज नेस्टेड, पहले ये चेक होता है, फिर बाद में पहले अंदर का चेक होता है, फिर बाद में ऊपर का होता है, तो इट ओवरराइड्स। बट एनी हाउ दिस कुड बी कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इंस्टेड ऑफ दैट ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मीडियम के बजाय यहाँ पे इसे लेस देन, हमारा कंडीशन क्या है, 500 है ना, लेस देन 500, तो उसे कर दो लो वैल्यू। एल्स पार्ट में क्या है, जो भी बचा खुचा है वहां पे कर दो मीडियम। मतलब क्या है, आपने एक हाई वैल्यू और लो वैल्यू और हाई वैल्यू को दे दिया। जैसे मैंने क्या डिसाइड कर दिया यहाँ पे, हाई, हाई वैल्यू का वैल्यू दे दिया और लो वैल्यू का वैल्यू दे दिया, कि भाई क्या कंडीशन है, बचा खुचा जो भी इसके बीच में रहेगा उसे मैंने डायरेक्ट मीडियम कंसीडर कर दिया है। इस तरह से भी आप वर्क कर सकते हो। एनीहाउ योर लॉजिक, इट डिपेंड्स हाउ टू राइट इट डाउन। ओके, सो यू कैन डू दैट आल्सो। सो अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, थोड़ा सा चेंज लाइक दिस, बिलो 500 आई कंसिडर इज एज अ, मैं इसको अल्टर कर देता हूँ लाइक दिस, एट मीडियम, लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हैं। रन कर लो, देखो यहाँ पे आ गया वैल्यू। ओके, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको फाइव थिंग इज हाई, कस्टमर वैल्यू ग्रेटर देन 1000, हाई वैल्यू, सेल्स अमाउंट, हाँ ओके, यहाँ पे, but if sum of sales amount is less than sales amount 500, should be low value। हम्म,
ऐसे क्यों आ रही है? ओके, लेट मी keep it like this for now. फिल्टर तो लगाया नहीं मैंने कुछ। शेयर मोड सही है। ओके, this. Okay, let me check. Leave. Leave. Sales amount is greater than। पहले मैं दो में करता हूँ बाइनरी में, फिर आगे जाएंगे, देख क्या क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। if this is this, if it makes like this, अगर 500 से ज्यादा है ना, 500 से अगर ज्यादा है तो we should consider as high। ठीक है, टेक्स्ट माइट बी शायद, ओ माइट बी शायद मैंने टेक्स्ट में लिखा था। ठीक है, नीचे की लगे, और एल्स उसे हम कहेंगे लो, इसे हाई कर देते हैं, प्रॉपर एच कैपिटल कर देते हैं ताकि सेम रहे। और ये एल्स पार्ट ना हो, इसे एंटर करके देखते हैं इफ इट इज वर्किंग और नॉट। हाँ, ये तो कर रहा है। ओके, माइट बी फिर वही गलती हुआ मेरे से। एक सेकेंड, माइट बी टैप, नहीं कोड तो दिया है। ठीक है, चेक करते हैं, नो इशू। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक और कॉलम ऐड करते हैं जहाँ पे कस्टमर कैटेगरी करते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर कैट कैटेगरी ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स, जो एल्स पार्ट है इसको ना लिखते हुए यहाँ पे इफ एक ऐड कर देंगे, इफ। अब यहाँ पे अगेन वही है, सेल्स में से जो सेल्स अमाउंट की वैल्यू है, इफ इट इज लेस देन 500, मेक श्योर इट विल बी कंसिडर एज अ लो, इफ दैट इज ट्रू। अदरवाइज जो कुछ भी बचा है उसे हम मीडियम करके कंसिडर करेंगे। दैट्स फाइन, ये हो गया। और इसको कर देंगे ब्रैकेट से और क्लोज, करते हैं रन। अच्छा, क्या हो रहा है ये? Why is it not showing the sales part? Oh, तो चेंज करना पड़ेगा ना। हम्म, हम्म, अब आ रहा है देखो, लेकिन फिर हाई का नहीं आया। 1000 से कोई ज्यादा नहीं है क्या? चेक करते हैं चलो। मैक्स मेरे ख्याल से, अच्छा मैक्स 1000 है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। डू दैट, नो प्रॉब्लम। इफ दैट सेल्स इज लेट्स से अबव 800, नॉट 1000 बट 800 ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, दैट वुड बी बेटर। अब आगे देखती हूँ। ओके, तो शायद पिछले इसमें शायद कोड में या फिर क्या गलती हुआ है, चेक करना पड़ेगा। 1000 के ऊपर तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ओके, सो व्हाट वाज देयर इन प्रॉब्लम, इफ, सर कम है वहाँ पे। हो सम नहीं चाहिए ना, मैं ये तो गलती है। ठीक है। हम्म
ठीक है। ओके, ना वैसे ही एक और ऑप्शन आपके पास में है, या फिर एक और कह सकते हैं कि अच्छा, जो अभी कॉलम यूज हमारा क्रिएट हो गया ना, जहाँ पे फिजिकल अभी कॉलम हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं विजुअल। ओके, तो विथ रेफरेंस टू दिस विजुअल हम क्या करेंगे, जो हमने सेल्स कैटेगरी जो लिया था, इसको उठा के आप यहाँ पे डाल दीजिए वाई एक्सिस में। तो ये वाई एक्सिस में इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक्स एक्सिस में अमाउंट सेल को, और वाई एक्सिस में कैटेगरी को डाल देते हैं यहाँ पे। कस्टमर कैटेगरी में अच्छा, ये यहाँ पे अगेन यहाँ पे सम ऑफ सेल्स कर देते हैं, ताकि सेल्स अमाउंट, कौन सा सेल्स अमाउंट, टोटल वाला ना ये। चलिए, इस तरह से मतलब आप क्या कर सकते हो कि उस कैटेगरी को, या फिर जो भी आपने कैटेगराइज किया है, उसको आप यहाँ पे ड्यूराइज कर सकते हो। बट कब होगा, जब आपका कॉलम में होगा तभी होगा। सिर्फ एक सिंगल वैल्यू से आप वहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से आप टेबल में कर सकते हो, बट एट दिस पॉइंट फॉर द विजुअल वहाँ पे नहीं कर पाओ। ओके, तो इसके से आपको क्या है, यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा rather देन मेजर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे ओके कि जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि नेस्टेड इफ, तो चलो आपको पता हो गया। अगेन, कैटेगराइज प्रॉफिट मार्जिन्स। अगर प्रॉफिट मार्जिन्स आप देखोगे कि प्रॉफिट मार्जिन में अगर आपको कह सकते हैं कि अगर 30% की इसमें है तो हमसे एक्सीलेंट कहेंगे, 200 के इसमें है तो 220 या 30% के इसमें है तो गुड, 10 या 20% में तो एवरेज, और अगर 10 से नीचे है तो उसे हम लो कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे कंसिडर क्या कर रहे हैं, ये अवेंत्या बोलिए। सर ये जो यूज केसेस है वो क्लाइंट देते हैं क्या? जैसे कैटेगरी, प्रॉफिट मार्जिन लेवल्स, एक्सलेंट, गुड, एवरेज, लो, जो बताया है वैसे। हाँ, आपको पूछते नहीं, आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है ना। आप किसी भी डेटा को, मेरे मुझे एक बात बताइए, आप इस टेबल में आए, सेल्स वाले टेबल में, वाले टेबल में आप क्या एनालिसिस हाँ करोगे? ये तो कॉलम तो चलो हमने क्रिएट किया, इसे छोड़ के बाकी कॉलम जो आपको दिख रहा है, आप एनालिसिस क्या क्या करोगे उसमें? सर, टोटल सेल्स कितना हुआ है, प्रॉफिट क्या कितना हुआ है, लॉस कितना है। सेल्स कितना, मतलब टोटल सेल्स कितना हुआ है, करेक्ट? हाँ, कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है। हाँ, टोटल सेल्स कितना हुआ है, और इस टोटल सेल्स में कौन से प्रोडक्ट का, जैसे कितना भी हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेस, प्रोडक्ट वाइज हाँ, सेल्स क्या हुआ है, और कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज। और कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं अपन।
कस्टमर वाइज कैसे करोगे? कस्टमर वाइज मतलब मतलब कौन मतलब एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट खरीद सकता है ना? तो एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदना, आप उतना डेप्थ में जाना, इज इट बेटर या है सेम ही उतना रिक्वायरमेंट? क्या? मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आपके पास अगर 50 ही कस्टमर है सिर्फ, ठीक है, हाँ, तो ठीक है कि एक कस्टमर कितना अमाउंट या फिर कितने प्रोडक्ट लेता है, कितने क्वांटिटी लेता है, तब तक के लिए ठीक है। लेकिन हर एक प्रोडक्ट, सॉरी, हर एक कस्टमर का एनालिसिस करोगे तो कैसे रहेगा? और क्या बेसिस में करोगे? मतलब प्रोडक्ट वाइज करोगे, कैटेगरी वाइज करोगे? क्योंकि देखो, जब आप एक सिंगल वैल्यू पे, एक सिंगल पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू पे या फिर एक डेटा पॉइंट पे स्ट्रक होते हो ना, तो आपको सिर्फ क्या होता है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। करेक्ट है? वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ऐसे में आपको अ, जहाँ पे नाम के ऊपर में एनालिसिस करना चाहिए या उसके कैटेगरी बेस में करना चाहिए? कैटेगरी बेस पे। तो कैटेगरी बेस में ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि कौन से कैटेगरी में कितने कितने लोग आते हैं, कौन से एज के आते हैं, कितना एवरेज सेल होता है, कितना प्रॉफिट हमें मिलता है ऑन एन एवरेज। उसके बाद में आप उसे रीजन वाइज ब्रेक करो, सिटी वाइज ब्रेक करो, या आपके लोकेशन वाइज ब्रेक करो, तब तक ठीक है। एक पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में बात करोगे तो भी बहुत सैचुरेटेड हो जाएगा ना। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा? मतलब उसका अमाउंट ऑफ सेल्स या फिर उसका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आपको क्या मिलेगा? हाँ हाँ। ओके, बेसिकली मेरा कहना ही था कि जैसे आपने एक ओवरऑल बता दिया कि भाई मैं टोटल सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालूंगा, फिर आप नेक्स्ट इसमें जाओगे, भाई क्वांटिटी में जाओगे, प्रॉफिट। तो बेसिकली जितने भी आपके क्वेरीज होते हैं, जो भी क्वेरीज है, क्योंकि आपको एनालिसिस करना है कि भाई ये जो सेल्स का जो अमाउंट है, जो भी इसका टोटल आया है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 10,000 आया है, 10,000 ही क्यों आया है? इससे ज्यादा क्यों नहीं आया, इससे कम क्यों नहीं आया? ऑन एन एवरेज कितना आता रहता है? ताकि आप क्या करोगे कि जैसे ऑन एन एवरेज अगर ये लाइन है, ओके, ये आपका अगर ऑन एन एवरेज लाइन, लेट्स से ग्राफ में करता हूँ, लेट्स से दिस इज योर ग्राफ। ऑन ऑन एन एवरेज अगर ये आपका लाइन बताता है कि ये 10K का ऑन एन एवरेज होता है, फॉलो ये होना चाहिए। मगर कंसिस्टेंटली अगर आपका ऐसे इस तरह से अगर पीक होता रहेगा, इस तरह से सब ऊपर नीचे हो रहा है ओवर अ पीरियड, तो ये क्या है, क्रिटिकलिटी, क्योंकि आपका ट्रेंड जा कहाँ रहा है, यहाँ पे जा रहा है। होना चाहिए एक्सपेक्टेड, क्या है आपका एक्सपेक्ट होता है ये, पर जा कर रहा है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपका एनालिसिस करना है। करेक्ट है? हाँ हाँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपका एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपने ये पॉइंट चेक किया, यहाँ पे ठीक है, बाकी सब चलो ऊपर जा रहे हैं, बट एक पॉइंट ऐसा भी आता है, एक टाइम, एक ऐसे पीरियड में कि भाई ये वो नीचे जा रहा है सेल्स। तो जो नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कौन से ईयर में, कौन से डेट में, कौन से पर्टिकुलर क्वार्टर में, या कौन से पर्टिकुलर रीजन की वजह से नीचे गया है, तो इसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इजंट इट? यस सर। तो और कुछ अपने आपको, को इनपुट्स मिलते हैं क्या? हाँ, मतलब क्लाइंट की तरफ से या कुछ इनपुट्स मतलब मिलते हैं क्या? आपको जैसे ऑब्जेक्टिव मिलते, ये इनपुट्स नहीं वाले मिलते, डेटा आपको पे। ऑब्जेक्टिव मिलता है। हाँ हाँ। इनपुट्स नहीं मिलते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है। जैसे आपको कहा ना मैंने कि एनालिसिस, सेल्स एनालिसिस, तो सेल्स एनालिसिस में सब कुछ आ जाएगा ना। वो हाँ आपको हाँ। थोड़ी बोलेगा कि सिर्फ क्वांटिटी में चेक करो। नहीं नहीं, मतलब कस्टमर का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या सेल्स होगा? हाँ, प्रोडक्ट्स और कस्टमर का ऑब्जेक्टिव ऐसे क्या है वो। कि ये कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर उसको एनालिसिस करके ग्राफ में उसने देखा, या किसी ने उससे रेफरेंस किया, फिर कहीं पे उसने एनालिसिस किया, तो उसका ऐसा पता चला कि ओवर अ पीरियड, जैसे ऐसे इस तरह से जा रहा था, इस तरह से कुछ हो रहा था, बट एक टाइम की बात, फॉर एग्जांपल लेट्स से इतना है, लेट्स से कि 2018, 2000 लेट्स से 12 से उसका सेल्स अच्छा चल रहा था, which was going up like this, but after 2018 it has been reduced और it has been declined, या फिर कह सकते हैं कि उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, it was like this, एक स्टैग्नेंट आ रहा है। तो ऐसे केस में आपका काम क्या है, योर वर्क ओवर देयर वुड बी टू एनालाइज व्हाई देयर इज सच स्टैग्नेंट, व्हाई देयर इज दिस लेट्स से कांस्टेंट वैल्यू ओवर देयर। नीचे जा रहा है तो नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, स्टैग्नेंट क्यों आया? अब उसका क्या है, उसका तो रिक्वायरमेंट है भाई, सेल्स क्यों नहीं हो रहा है। सेल्स क्यों नहीं हो रहा था, आपको चेक करना होगा कि भाई क्वांटिटी में कुछ कम हुआ है क्या, कहीं डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं क्या, कहीं सेल्स का जो रीजन वाइज जैसे कैटेगराइज होता है, तो कहीं रीजन में कहीं सेल्स कम हो रहा है, तो वहां पे क्यों कम हो रहा है, क्या वहां पे डिमांड कम हो रही,
all those will come. Whatever is calculated with reference to sales, everything you have to analyze. Okay, Is sir. it clear? Yes, sir. Okay, so ऑब्जेक्टिव होता है, जो प्रॉब्लम होता है बेसिकली कस्टमर का प्रॉब्लम जो होता है वो अपने लिए ऑब्जेक्टिव होता है. बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड कि भाई मुझे एनालिसिस करते समय कौन सा कॉलम चाहिए, कौन सा फील्ड चाहिए, मैं उसमें से क्या एनालिसिस करूंगा. बिकॉज आपको एज ए एनालिस्ट पता होना चाहिए, कस्टमर को तो नहीं पता ना, क्लाइंट को थोड़ी पता है कि वही कौन सा पैरामीटर में मैं देखूंगा, फिर कौन सा पर्टिकुलर, क्योंकि वो आप डेटा आपके पास होगा, आप डेटा भी देख रहे होंगे, यू आर गोइंग टू हेल्प हिम. ओके ओके. ओके. जैसे सर मेरा एक क्वेश्चन था. हेलो. बोलिए बोलिए. कि क्लाइंट जब डेटा देता है तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी देता है क्या, ये मुझे चाहिए इसमें से, या फिर हाँ, उसी के ऊपर हम खुद ही वही तो बोला ये करना देता है. पड़ेगा? देखो वो सिर्फ क्या करता है, आपको ऑब्जेक्टिव देता है. ओके, ऑब्जेक्टिव में क्या बताएगा कि भाई मेरे प्रॉब्लम्स क्या है. अगेन इट कुड बी मल्टीपल, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. ओके, वो क्या होगा, मल्टीपल आपको उसके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रोवाइड करके दे देगा. बट बेस्ड ऑन दिस ऑब्जेक्टिव आपको डेटा, जो डेटा आपको लगेगा वो कौन आस्क, या फिर वो कौन आपको, फिर वो आप कहाँ से कलेक्ट करोगे, आपको डिसाइड करना है कि डेटा क्यों. क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस में आपको जो कस्टमर के पास में डेटा है वो डेटा कैसे सेव कर रहा है, वो तो प्रीवियस टाइम से सेव, जैसे पिछले साल से, पिछले कुछ डेकेड से सेव करते जा रहा है. ओके, उसको थोड़ी पता था कि आप आओगे एनालिसिस करोगे. सो उसके पास जो जनरल डेटा है एक डेटाबेस में सेव किया है, उसमें से कौन सा कॉलम, कौन सा टेबल, कौन सा जो भी आपको एनालिसिस करने के लिए डेटा लगेगा वो आप डिसाइड करोगे. यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट. ओके, ये कस्टमर इसमें हो गया. जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो वहां पे हो सकता है सीनियर अथॉरिटी हमें पूछे कि जैसे सेल डाउन जा रहा है तो क्यों जा रहा है, या फिर सेल्स पर्सन का जो है उनका कितना आ रहा है महीने का पूरा, लो में कौन है. तो ये सब चीजों के तो हमें जो सीनियर अथॉरिटी रहेगी वो पूछेंगे ना, कि इस बेसिस पे मुझे ये वाला रिपोर्ट या फिर ये वाला डैशबोर्ड बना के दो. हम्म. वो बेसिस पे तो वो खुद बोलेंगे ना, मतलब कंडीशन देंगे, जैसे कि अभी आपने ये जो कंडीशन लगाया था. हाँ वही बोल रहा हूँ. देखो फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन कैटेगरी, सिर्फ उतना ही मुझे इन्फॉर्मेशन दो. ठीक है ना, ये लेकिन ये कब डिसाइड होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए. जैसे आप पकड़ लो कि एक अमेजोन का आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज या फिर उनके जो प्रोडक्ट है ओवरऑल, इट्स समथिंग बिलियंस में. तो अब उतने सारे प्रोडक्ट्स को हम एनालिसिस करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल. सो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उस पर एनालिसिस करना है. इन दैट वे वी विल एनालाइज. और उसमें भी क्या होगा, कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट में ओवर अ पीरियड जो स्टैग्नेंट आ गया है वैसा नहीं था, अब क्यों आया वो पता करो. अब उसमें आपको डिसाइड करना होगी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी प्रोडक्ट्स है, अगेन प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट वाइज कौन से रीजन में सेल होता है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है. क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप ऐसे पूरा देखोगे, चेक करोगे, माइक प्लीज ऑफ ऑफ कर दीजिएगा जरूर नहीं तो होता क्या है, दिखने में आपको लगेगा कि ये शायद सम ऑफ, क्योंकि टोटल है, टोटल ए, बी और सी रीजन का आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई सेल्स कैसे चल रहा है रीजन्स में. यू माइट सी दैट बी रीजन में सबसे ज्यादा है. बट जब आप कंपेयर करते हो कि भाई आपके पास अगर 40 प्रोडक्ट है तो 40 प्रोडक्ट में से हो सकता है कि शायद इसमें 5 प्रोडक्ट अवेलेबल ही ना हो, इसमें वो आए भी ना, फिर भी ये हाइट पे है. तो ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट है जो ना आते हुए भी आपका सेल ज्यादा हो रहा है, उसे आइडेंटिफाई करो. लाइक दैट इट विल बी देयर. इज इट क्लियर? सर मतलब हमें जब भी डेटा मिलता है वो तो जो जिनका जो भी रहेगा वो पूछेंगे हमें ये चीजें चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी हमें वो डेटा पे पूरा एनालाइज करना है, राइट? ऑब्वियसली ऑब्वियसली. देखो मैंने आपको कहा सिर्फ आपको अगर सेल्स एनालिसिस करना है तो आप क्या सिर्फ सेल्स का टेबल लेके एक चार्ट बना दो कि हाँ भाई सेल्स ऐसा ऐसा चल रहा है, बस इतना ही? ऐसा नहीं होता है. जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आता हूँ, एक चार्ट यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करता हूँ. ये अपना सम ऑफ सेल्स अमाउंट है, इसको यहाँ पे डाल दिया. और ये आपका, सर ये देखो ये टोटल आपका इतना आ गया, बस इतना करके हम छोड़ देंगे क्या? नहीं, हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि अगर इस डेटा को, अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल जैसे अपना कस्टमर कैटेगरी यहाँ पे पुट किया था, ये 3 हिस्से में डिवाइड होता है.
तो नॉर्मली क्या होना चाहिए भाई, लो जो सेल्स हो रहा है, ठीक है, लो सेल्स हो रहा है, इसकी क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए, विच इज फाइन। लेकिन जब आप देखोगे तो मीडियम और हाई, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्यों नहीं है, वाई इट्स नॉट देयर? बिकॉज कंसिडरिंग में क्या है कि अगर हाई सेल्स का हमें देखना है, तो हाई सेल जो है जितना ज्यादा बिकेगा हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। सो व्हाई इज इट देयर? क्यों हो रहा है? लो है तो क्यों उसके आसपास जा रहा है? दैट ऑल एनालिसिस हैज टू बी डन। और ये कौन, ये थोड़ी कस्टमर आपको बताएगा, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। ओके, ये तो आपके स्टेप बाय स्टेप ओके आप खुद ऐड करते हुए चेक करोगे। ओके, ओके सर, ओके ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि कुछ डेटा को फिल्टरिंग करना है। जैसे क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल सेल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी। अब आप देखोगे कि आपके इस टेबल में, सेल्स टेबल में, इस सेल्स वाले टेबल में कहीं पे भी कैटेगरी नहीं है कि कौन से कैटेगरी का है। हाँ, प्रोडक्ट डेटा है, देखो यहाँ पे आप आओगे तो प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है, सेल्स अमाउंट है, क्वांटिटी है, ये सब चीजें। लेकिन ये थ्री किस प्रोडक्ट को बिलोंग करता है मेरे पास उसका यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं है। देयर इज नथिंग ओवर हियर। 5 किसके, 13 किसको बिलोंग करता है। ये प्रोडक्ट आईडी का टेबल आप देखोगे तो आपके पास में एक डेटा है जहाँ पे प्रोडक्ट्स करके है, ये देखो। तो वन, जैसे हमारे इसमें कौन सा था, हम किसकी बात कर रहे थे? 3 नंबर है, 3, 5, 13। ओके, तो 3 पे बुक है, 5 बोर्ड बुक है, 13 एडमिट टेबल है, ऐसे कुछ है। और प्रोडक्ट नेम के साथ में कैटेगरी क्लोथिंग में आती है वो, ये बुक्स में आता है, और ये होम डेकोर में आता है। तो ऐसे क्या है कि ये दूसरे टेबल में अवेलेबल है। ओके, ये कहाँ पे, दूसरे टेबल में अवेलेबल है। मतलब मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता यहाँ पे, मैं ये नहीं जान सकता है, फिर मैं सम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जब मुझे ये पता चल गया है कि जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस में, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा में, कहाँ पे, प्रोडक्ट के टेबल में जाऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा है, मैं इसे यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और यहाँ पे कर दूंगा ओके। तो 20, 16, 11 और 6 ये मुझे पता चल गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इनके बेसिस में मैं स्लाइसर वगैरह लगा के करना, बट इज इट अ लॉजिकल थिंग? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, बिकॉज ये पॉसिबल भी नहीं और इतना इजी भी नहीं है। इसके अलावा जो मेथड है, पहले मैं इसको निकाल दूं यहाँ से फिल्टर। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या होता है, आप क्या करो, आपका जो सेल्स वाला टेबल है, ये जो सेल्स वाला टेबल है, इसके साथ क्या करो, आपका जो प्रोडक्ट वाला टेबल है, ये वाला टेबल, इसका क्या करो, आप रिलेशनशिप बना लो। ओके, वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब क्या, आपका डेटा ट्रांसफर करते समय, जैसे यहाँ पे आप देखोगे एरो, एरो क्या बता रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स ईयर, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। मतलब आपका ये जो सेल्स टेबल है, ये फैक्ट टेबल है। अब फैक्ट टेबल मतलब क्या, जहां पे आपके दिनचर्या के, डेली रूटीन का, या हर बार का डेटा, या हर रोज का डेटा, ऑर्डर डेट की, डेट के हिसाब से जो कुछ भी है स्टोर होता रहता है। एवरीथिंग इज स्टोर इन दिस टेबल। ओके, ना उसके अलावा जैसे अभी मुझे इस टेबल में सिर्फ सेल्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, रिलेटेड सेल्स, वहां पे मुझे प्रोडक्ट के बारे में नहीं चाहिए, कस्टमर के इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, वहां पे नहीं रखना है मुझे, मुझे सिर्फ सेल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए क्या किया हमने, कस्टमर का अलग टेबल बनाया। इसलिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट का अलग टेबल बनाया। तो ऐसे केस में क्या है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, दूसरा टेबल में जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या बिलोंग करता है, बिकॉज ऑल दैट। तो ऐसे केस में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट टेबल का और सेल्स टेबल का रिलेशनशिप बना सकते हैं। रिलेशनशिप मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डिनैलिटीज। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी मतलब वन, 1 to 1, 1 to many, many to many, and many to 1। मतलब एक टेबल में एक यूनिक वैल्यू है, दूसरे टेबल में एक यूनिक वैल्यू है, उसको आप जोड़ रहे हो। जैसे एक टेबल है, इस पूरे टेबल में सिर्फ क्या है, एक आईडी है, उस आईडी का नंबर क्या है, 4। आप ये टेबल को, आईडी टेबल 1 को, एक दूसरा टेबल है जिसका ID 2 करके टेबल नाम है, उसमें भी 4 ही नंबर है, सिर्फ इतना ही डेटा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 है। मतलब क्या है,
ये आपके पूरे टेबल में यूनिक वैल्यू है, कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है। दूसरे टेबल में भी यूनिक वैल्यू है। आप जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, इट विल बी 1 to 1 कनेक्शन, 1 यूनिक वैल्यू टू 1 यूनिक वैल्यू, 1 to 1 कनेक्शन। वेराज इसको थोड़ा सिनेरियो अगर चेंज कर देंगे, जहां पे 4 4 4 देन 1 1 2 3, कुछ इस तरह से वैल्यूज है, 3 लाइक दिस, 2 इस तरह से, और यहाँ पे भी सेम 4 4 1 1 2 3 3 2 2। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 4 भी मल्टीपल टाइम है, 4 4 4, 1 भी मल्टीपल टाइम है, 2 भी मल्टीपल टाइम है, 3 भी मल्टीपल टाइम है। आपने क्या किया, यू आर कनेक्टिंग दिस, यहाँ पे भी मल्टीपल है, यहाँ पे भी मल्टीपल है। आप क्या कर रहे हो, इस मल्टीपल वैल्यू को दूसरे टेबल में जहाँ पे मल्टीपल है, ये मल्टीपल का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मल्टीपल है, आपने क्या किया, मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल वैल्यू से लिंक किया, इसलिए ये मेनी टू मेनी, मल्टीपल मतलब मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी पे आता है। पहले था यूनिक टू यूनिक, एंड व्हाट अबाउट यूनिक टू मेनी। आपके डेटा में यहां टेबल में सिर्फ एक वैल्यू है, 4 1 2 3। अब यहां पे क्या है, जितने भी यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे मल्टीपल टाइम है, पर यहाँ पे क्या है, इनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही बार आया है। दैट मीन्स दोज आर रिपीट, दोज आर प्रेजेंट फॉर ओनली यूनिक वैल्यू, दोज आर ओनली रिपीट फॉर वंस, एक ही बार वहां पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 टू मेनी, क्यों, यहाँ पे मेनी टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे जो देखो 1 टू मेनी, बिकॉज इन प्रोडक्ट आप देखोगे कैटेगरी को यूनिक कैटेगरी से अलोकेट कर रखा है। 1 आईडी जो है किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है, 2 है किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी, या फिर नॉट कैटेगरी, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए है। ओके, तो आपने ज्वाइन कैसे किया, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी टू प्रोडक्ट आईडी किया है। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, क्यों, वो सेल्स है ना। 4 तारीख को हो सकता है सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 4, ये जो प्रोडक्ट आईडी है 4 नंबर का, 4th डे को या 4th तारीख को, जो 4 नंबर दोनों कंफ्यूज जाएंगे नहीं तो, 10 नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी जिसका 10 नंबर है, 4th तारीख को 10 प्रोडक्ट का जो आईडी है, ये कितने बार हुआ है, ये 5 टाइम्स सेल हुआ है। कितने, 5 टाइम्स। तो प्रोडक्ट आईडी कितने बार रिपीट होगी, 10 10 10 10, 5 टाइम्स होगी ना, तो रिपीट होगा। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स होंगे रिपीट। बट आपको जब चेक करना है कि भाई ये जो प्रोडक्ट आईडी है 10, ये किसकी है, तो यहाँ पे आओगे, तो इसका तो यूनिकली प्रोडक्ट आईडी 10 किसे बिलोंग करता है, ये तो एक ही बार लिखा होगा, वो थोड़ी बार बार लिखा होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे 1 टाइम, सो इट इज कनेक्टिंग 1 टू मेनी। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। ये सर, ये शायद ये एसक्यूएल में भी ऐसा ही आता है ना, फॉरेन की और ये प्राइमरी की। नहीं, की मत देखो, अभी सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में, कार्डिनलिटी बोल रहा हूँ। ओके, प्राइमरी की फॉरेन की इज अ डिफरेंट, वो जब आप डेटा सेट इनपुट करते हो ना तब यूज होता है, बट यहाँ पे रिलेशनशिप। ओके, ओके, तो यहाँ पे रिलेशनशिप है, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे 1, स्टार मीन्स मेनी, 1 मीन्स बाय इटसेल्फ नेम जो 1 है, सो इट इज 1 टू मेनी रिलेशनशिप। यहाँ पे भी 1 टू मेनी है, क्यों, कस्टमर आईडी। अब आपके यहाँ पे जैसे कस्टमर है, अब यहाँ पे कस्टमर क्या हो सकता है, सेम आईडी, जैसे आज 4 तारीख है, कल 5 होगा, कल 6 होगा, 7 होगा, एज्यूम कीजिए। तो हो सकता है कि सेम कस्टमर इस दिन में भी आए, यहाँ पे भी आए, चलो यहाँ नहीं आए लेकिन साथ में फिर से आ सकता है। तो सेम नंबर का आईडी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम एक्स है, अब एक्स वाला बंदा 4 तारीख को भी आया था, 5 को भी आया था, 7 को भी आया था, 6 को नहीं आया था, रिपीट तो हुआ। बट ये एक्स है कौन भाई, अगर आपने एक्स आईडी को है कौन ऐसा चेक किया तो उसका नाम तो एक ही नाम होगा, उसका नाम थोड़ी 3 बार लिखा जाएगा। तो कस्टमर के टेबल में सिंगल अगर 50 लोग है तो 50 लोगों की एंट्री एक ही बार आएगी। एक ही बार मतलब 1 एक बार, 2 का एक बार, 3 का एक बार, ऐसे एक बार ही एंट्री आएगी, यूनिक रखा जाएगा। ओके, सो लाइक दैट, सो दैट्स व्हाई 1 टू मेनी, इस तरह से आपका रिलेशनशिप। वंस यू हैव रिलेशनशिप, आपका एक बार रिलेशनशिप हो गया तो ये कहाँ यूज होता है,
ये जो एरो है ना, ये एरो बताता है कि आपका फिल्टर डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है। आपके पास में जो भी वैल्यू, अब यहाँ मतलब इसके अंदर में, इस टेबल के अंदर में आप जो भी वैल्यू बोलो या फिर जो चीजें आप यूज करोगे, उसको फिल्टर करने के लिए हम इस प्रोडक्ट टेबल से यूज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, सेल्स का यहाँ पे एक कॉलम ले लेंगे और फिल्टर क्या करेंगे, बाय बाय प्रोडक्ट नेम बोलो या फिर प्रोडक्ट। तो क्या होगा, वैल्यू जो है यहां से आएगा सेल्स ऑफ, और प्रोडक्ट कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट फिल्टर डायरेक्शन ये है, यहां से फिल्टर आपका जाएगा। ओके, इस तरह से वो वर्कआउट होता है। चेंज करना है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके डेटा में बाय डिफॉल्ट पावर बीआई ने खुद ब खुद रिलेशनशिप जनरेट करके खुद ब खुद उसे अलोकेट कर दिया है। ओके, खुद ब खुद उसने क्रिएट किया है। लेट्स से कि ये मैं डिलीट कर देता हूं, अभी के लिए डिलीट कर देता हूं। नाउ लेट्स से कि मुझे करना है, क्रिएट करना है। ओके, बाय डिफॉल्ट जैसे भी पावर बीआई ने ये तो चलो खुद ब खुद बना लिया, बट मुझे बाद में एहसास हुआ कि अरे ये भी तो है जो बन सकता है, फिर ये भी है जिसका होना चाहिए कनेक्शन। तो मुझे क्या करना है, इस सेल्स टेबल में प्रोडक्ट आईडी और इस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट आईडी नेम और प्रोडक्ट आईडी नेम यहाँ पे सेम है। ये कभी भी मत सोचना कि यहाँ पे कॉलम नेम और यहाँ पे कॉलम नेम सेम है तो ही अवेलेबल होगा, नहीं, ये रॉन्ग है। नॉट थिंक लाइक दैट। It's not about label, it's not about header of a column, it's about data within that column. आपका ऊपर x1 एक टेबल में है कॉलम का नाम, और दूसरे टेबल में x1 है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है, और यहाँ पे देखो इसका डेटा कैसे हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। सेम डेटा अगर यहाँ पे है तो ही वो मैच होता है, अदरवाइज ये नहीं होगा, क्योंकि डेटा फोर्सफुली भी आप क्रिएट करके ज्वाइन, तभी भी आपको आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इट हैज टू बी, अगर ये x2 करके नाम होगा, यहाँ पे कॉलम का नाम, यहाँ पे x1 होगा, लेकिन अंदर का वैल्यू सेम होगा, तो भी दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइन वर्क करेगा, बिकॉज दैट इज अ लॉजिक। वो रिक्वायर्ड है, अंदर का वैल्यू रिक्वायर्ड है, हेडर नहीं है। ओके, सो रिमेंबर दैट। सो यहां से ड्रैग करता हूं उठा के और यहां पे रख दूंगा लाइक दिस। देखो, सेल्स टेबल में से कौन सा कॉलम जो मैंने सिलेक्ट किया है, प्रोडक्ट आईडी का कॉलम, ग्रे दिख रहा है ना बाकी उसे। प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी का कॉलम, जहां पे अंदर की वैल्यू, यस 3, 5, 15 जो भी प्रोडक्ट आईडी है ये मैच होता है, दैट इज बीन सेड। कौन सा टाइप का कनेक्शन हो रहा है, मेनी टू वन। व्हाई, बिकॉज मेनी टू वन मैंने कहां से ड्रैग किया, सेल से ड्रैग करके आप प्रोडक्ट में डाल रहे हो। तो मेनी टू वन, बिकॉज मेनी इज अवेलेबल ऑन द फर्स्ट टेबल एंड वन इज अवेलेबल ऑन दिस प्रोडक्ट टेबल, सो मेनी टू। क्रॉस फिल्ट्रेशन या फिर क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या है, सिंगल। यस इट इज सिंगल, बिकॉज मुझे जो मेरा फैक्ट टेबल है, जो ये फैक्ट टेबल है, जहां पे हर रोज का, हर बार का फैक्ट रिकॉर्ड होता है, उसको डायमेंशन, मतलब क्या, हमारा फिल्टर डेटा, जो डायमेंशन है वो मेरा प्रोडक्ट का है, तो डायमेंशन टेबल से फिल्टर करना है। सो दिस शुड बी लाइक दिस फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली। तो यस, सिंगल डायरेक्शन यहाँ पे किया है। एंड अगर मैं, चलो ये आपको एक क्लिक करके दिखाता हूँ, पहले भी हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। नाउ दिस लाइन हैज टू बी लेट्स से सॉलिड लाइन। ओके, ये डॉटेड लाइन है, इट शुड नॉट बी अ डॉटेड लाइन। दिस मीन्स दैट इट इज नॉट एन एक्टिव रिलेशनशिप। एक्टिव रिलेशनशिप मतलब क्या है, देखो इस सेल्स टेबल के साथ में हो सकता है कि प्रोडक्ट और सेल्स के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप आए। अभी के लिए हो सकता है कि चलो एक ही दिख रहा है, बट कल जाके क्या पता कि शायद मल्टीपल आ जाए। तो ऐसे केस में क्या है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही रिलेशनशिप एक्टिव रह सकती है। एट वन टाइम देयर कैन बी ओनली वन रिलेशनशिप दैट कैन बी एक्टिव। वी कैन नॉट पुट एवरी कॉलम एंड एवरी कनेक्शन विथ एवरी पर्टिकुलर टेबल एज अ एक्टिव। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, इट्स अ सॉलिड लाइन विच इज एक्टिव लाइन, एक्टिव कनेक्शन है। ये जो डॉटेड लाइन है इसे हम इनएक्टिव कहते हैं। टू मेक दिस एक्टिव, डबल क्लिक करो इस पे, लाइन पे। ओके, यहाँ पे मार्क कर दो, मेक इट रिलेशन एज एक्टिव, से सेव कर दो, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज वहां पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये ओपन होता है, इस पे आप क्लिक करोगे, ओके, इस पे डबल क्लिक करोगे तो वही टेबल आता है, ये देखो ये वाला, और यहीं पे देखो प्रॉपर्टी में तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आता है। ओके, सेम डिटेल्स आते हैं। ओपन रिलेशनशिप एडिटर,
वो आ जाएगा यहाँ पे जो आपने किया था. ओके, लाइक दिस वी कैन हैंडल इट. ओके, नाउ दिस वे वी कैन मेक रिलेशनशिप. वंस यू हैव दैट रिलेशनशिप, अब जैसे मैंने आपको कहा था, अगर ये मेरे पास रिलेशनशिप नहीं होता है, इफ आई डिलीट दिस, अभी डिलीट किया है मैंने, हम विजुअल पे आते हैं. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये क्लस्टर लेके आता हूँ, सेल्स अमाउंट का कॉलम यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे से मैं करता हूँ प्रोडक्ट्स में से कैटेगरी पे क्लिक करके. सी, सब के सब वैल्यू क्या है, देखो सब के सब वैल्यू के यहाँ पे पूरा सेम है, सबका सब सेम वैल्यू है, सबका सब सेम. 49 जो टोटल अमाउंट ऑफ लैक का सेल्स था, सबका सब वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल. क्यों? ये आपको राइट आंसर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एक टेबल के अंदर में, प्रोडक्ट टेबल के अंदर में जो कैटेगरी है और सेल्स के अंदर में जो प्रोडक्ट आईडी है, उनका रिलेशनशिप ही नहीं है. ओके, वो आपको आउटपुट नहीं दे पा रहा है. सो इफ आई गो ओवर हियर मॉडलिंग में, एंड इफ आई मेक दैट प्रोडक्ट आईडी हैपन ओवर हियर लाइक दिस, एंड इफ आई से ओके यस प्लीज प्रोसीड विद दैट, and if I go back over here, you will see that yes, now it is giving a proper information where होम डेकोर, बुक्स, फर्नीचर, जितना भी वैल्यू है उसको हम आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ दिस इज रिगार्डिंग विजुअल, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट इट. बट व्हाट अबाउट क्रिएटिंग अ डैक्स फॉर दैट? सो हमें क्या करना है, देखो जिसमें मैंने आपको कहा था, आई वांट टोटल सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली. ठीक है, विजुअल के थ्रू तो पता चल गया, लेकिन डैक्स में कैसे करेंगे? सो वी आर गोइंग टू यूज कैलकुलेट फंक्शन which will calculate sum of this value, where we will filter a data saying that my products जो टेबल है उसमें से प्रोडक्ट्स में कैटेगरी कॉलम जहां पे इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स है उसी को फोकस करो. ओके, सो लेट अस गो ओवर देयर. व्हाट वी विल डू, विल कॉपी दिस वन. अगेन ये मेजर रहेगा, क्यों? आपको टोटल चाहिए, इसको कॉलम क्रिएट नहीं करना है. ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूं बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. सो आई विल collapse this, I'll expand this sales with reference to ठीक है, I don't have to be, ठीक है सेल्स में कर देते क्योंकि सेल्स में पूछा है ना मुझे, सम ऑफ सेल्स था ना हमारा. गेट क्लिक ओवर हियर, मेजर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ. सो टोटल सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली. सो कैलकुलेट क्या है? अगेन इट कैलकुलेट्स ओवर इनपुट, जो आपने ये दिया है ये पूरा इनपुट, इसके ऊपर में वो जो भी वैल्यू आएगा उसको कैलकुलेट करके आपको शो करेगा, नथिंग अदर देन दैट. कैलकुलेट. अच्छा, अगेन जिसने आपको कहा था ये रीड कैसे करें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्री बेसिस में जो हमें इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस कैसे मिलेगा, कहाँ से करें, तो आपको ऑलरेडी बता रखा है. जो डैक्स फंक्शन यहाँ पे आना है, अगर यहाँ पे आपको वो नहीं मिलता है, अगेन हो सकता है कि शायद यहाँ पे ढूंढने में आपको पता ना चले कि भाई कहाँ पे जाओ, कहाँ पे ढूंढो, कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालो उसका. कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाइए, पावर बीआई डैक्स फंक्शन में स्पेसिफिक डैक्स फंक्शन बता दिए, डैक्स फंक्शन कैलकुलेट, इस तरह से लिख दीजिए कैलकुलेट फंक्शन, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे आ जाइए, आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, वो यहीं पे लेके आएगा. देखो ओके, यहीं पे लेके आएगा, नथिंग, कहीं नहीं जाएगा कहीं और. सो कैलकुलेट फंक्शन जो फिल्टर फंक्शन में आता है, फिल्टर क्या करता है देखो, ये इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन इन अ मॉडिफाइड फिल्टर कॉन्टेक्ट्स. ओके, देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं. कैलकुलेट एक्सप्रेशन क्या देना है दीजिए, फिल्टर फंक्शन यूज कीजिए, कौन सा फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3, मल्टीपल फिल्टर्स लगाने लगा लीजिए और आपका यहाँ पे वर्कआउट करेगा. उसके लिए आपको एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बताया है कैसे करना है. दिस आर थिंग्स दैट ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ के वर्कआउट देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इस तरह से आपको वर्कआउट करना है. तो हम यहाँ पे वापस आते हैं. अब ये रन कैसे कर रहा है देखो. कैलकुलेट करो, क्या करना है, सम, क्योंकि टोटल में सम चाहिए. ओके, तो ये आपका है. अब कभी भी ध्यान रखना, कभी भी जब आपका कोड रन होता है ना, तो अगर ऐसे इस तरह से ब्रैकेट्स है, तो कभी भी ध्यान रखना फर्स्ट जो ब्रैकेट इवेल्युएट होता है वो अंदर का सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फर्स्ट इनर ब्रैकेट, फिर उसके बाद में होता है उसका आउटर ब्रैकेट, और फिर बाद में जो लास्ट होता है, जो उसका सबसे एक्सट्रीम आउटर है, वो वाला एग्जीक्यूट होता है. सो ब्रैकेट से ब्रैकेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, क्योंकि देखो डेटा में जैसे आपको मैंने कहा था, कभी भी ध्यान रखो, अगर डेटा है, अब डेटा में जैसे ए प्रोडक्ट है, ए के अंदर में मल्टीपल वैल्यूज है, बी के अंदर में मल्टीपल वैल्यूज है, सी के अंदर में मल्टीपल वैल्यूज है, और आपने क्या कहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बी का डिटेल चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर आपको टोटल ऑफ क्या, टोटल ऑफ बी प्रोडक्ट का अगर टोटल चाहिए, तो डेटा क्या लगता है आपको कैसे प्रोसेस होता है? क्या आपको पहले पूरा का पूरा टोटल इसका आपको एक वैल्यू दे देगा,
फिर उसके बाद में अच्छा अच्छा अभी बी का चाहिए क्या, फिर हाँ उस टोटल में से मैं उतना माइनस करूंगा। इज दिस समथिंग हैपनिंग ओवर हियर, ऐसा लगता है आपको गाइस? हेलो गाइस, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पे आपको क्या लगता है, पहले सबका सम आएगा, टोटल जितना भी मतलब पूरा का पूरा जो सम ऑफ सेल्स का है वैल्यू, इसका पहले टोटल आएगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, फिल्टर दिया ना, तो फिर इसके बाद में क्या होगा, हाँ अच्छा मतलब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो अगर 10,000 आया तो फिर क्या फिल्टर लगेगा, अच्छा फिल्टर किस पे लगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अच्छा फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया है या फिर जो भी बाकियों का है इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, तो ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट का जो टोटल आया है इसमें से हम माइनस करेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो सी को डिनोट हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है जो कोई भी होगा। क्या इस तरह से होता है आपको लगता है डेटा? डज इट फ्लो लाइक दिस? नहीं सर। नहीं होता है। कभी भी नहीं ध्यान सर। रखो, पहले फिल्टर होता है एग्जीक्यूट, पहले फिल्टर, उसमें भी अगर क्राइटेरिया अगर दिया है कुछ तो पहले ई फेल्स वो क्राइटेरिया, फिर फिल्टर। फिल्टर बेसिकली वही काम करेगा, बट अगेन एनी हाउ, फिल्टर, फिल्टर में क्या है, प्रोडक्ट टेबल में जाना है, उस प्रोडक्ट में से सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी, जो कैटेगरी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी को सिर्फ पकड़ना है, ओनली ओनली दैट वी हैव टू मेजर। विद दैट सेड, फिर क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे आओगे जहां पे सेल्स में देखोगे कि अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा फिल्टर डेटा में, क्योंकि रिलेशनशिप बन गया है अभी। अब रिलेशनशिप मतलब आप डेटा फिल्टर के लिए दूसरे टेबल से लेके आ रहे हो और उस सम ऑफ सेल्स पे लगा रहे हो। ओके, तो पहले एग्जीक्यूशन ये, एंड देन इट विल बी बेस्ड ऑन दैट। सो इस तरह से आपका वैल्यू आएगा, जो भी आंसर आएगा इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। अगेन ये मेजर है, इस पे हम क्लिक करते हैं, एक कार्ड है, नहीं कार्ड पे क्लिक करते हैं, टोटल सेल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स ये वैल्यू है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, लेट्स क्रॉस चेक इट। इस पे क्लिक करता हूं मैं, सम ऑफ सेल्स अमाउंट है, कैटेगरी में, कैटेगरी पे कर देते हैं, ये वैल्यू है, मतलब ये चार्ट है आपका। अब इसको हम क्या करते हैं, डेटा वैल्यू लेबल्स दे देते हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, सी, इज इट क्लियर गाइस? टूल टिप पे दिख रहा है देखो आपको। Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, सो दिस वे वी कैन यूज डैक्स फंक्शन। ओके, अलग अलग वैल्यूज को यूज करने के लिए, उसमें से कुछ आउटपुट निकालना है कंडीशन बेसिस में, तो उसके लिए डैक्स यूज किया जाता है। अगेन विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस फिल्टरिंग एंड टाइम इंटेलिजेंस है, रैंकिंग्स है, और भी कुछ है हमारे पास में, स्लीव्स में रिलेशनशिप है, टेक्स्ट है, फंक्शंस है। सो टुडे विल स्टॉप ओवर हियर, टुमारो वापस आएंगे तो बाकी का जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू गाइस। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, सो मेक श्योर कि आप इसे बाद में यूटिलाइज कीजिए। सर एक क्वेश्चन था. बोला ना। म्हटलं ते जे आपण रिलेशनशिप बनवतो ना, त्यामध्ये समजा जर पूर्ण जे आहे याच्या आतमध्ये टेबल जे आहे त्याच्या आतमध्ये जी व्हॅल्यू आहे ती ऍज इट इज मॅच झाली पाहिजे का? समजा बऱ्याच वेळा काय होते, आता जसं आम्ही जिथे काम करतो तिथे एम्प्लॉय आयडी मध्ये काही कॉलम मध्ये ना फक्त न्यूमेरिकल व्हॅल्यू घेते, बट आमचा एम्प्लॉय आयडी जे आहे त्याच्या आतमध्ये अल्फाबेट आणि न्यूमेरिक व्हॅल्यू दोन्ही पण प्रेझेंट असते. नाही, ऍज इट मग इज त्याच्या पाहिजे ना, आतमध्ये ऍज इट इजच लागणार ते. ऍज इट इज लागेल, अदरवाइज काय होणार की तो वेगळा वेगळा डेटा रेफर करणार ना, कन्सिडर नाही करणार मग तो. ओके. मग कॉन्कॅट यूज करून घ्या ना.
कॉनकॅट यूज करावं लागते त्याचं. हा 2 टेबलला काय करा, म्हणजे जिथं समजा कदाचित असं असू शकतो, जसं असतं ना कधी कोणत्या कंपनीमध्ये की दीपक नाव असेल तर DWP स्टार्टिंगचे 3 वर्ड आणि नंतर पुन्हा एखादं त्यांचं जॉईनिंग डेट वगैरे किंवा असं नंबर करून कॉन्टॅक्ट करतात मग एम्प्लॉय आयडी होतो. तर कदाचित तसं सेपरेट असेल तो कॉन्टॅक्ट करून घ्या, तो सेम होऊन जाईल, मग करू शकता. ओके. आणि हे Basically- रिलेशनशिप जेव्हा आपण बिल्ड करतो तेव्हा डेटा टाइप पण सेम असला पाहिजे का? नाही डेटा टाईपचा प्रॉब्लेम नाही. डेटा टाईप सेम म्हणजे ऑब्व्हियसली नंबर असेल तर पॉवर BI नंबरच घेणार ना. ओके. म्हणजे कोणताही टूल तुम्ही वापरलात, जसं एक्सेल म्हणा किंवा कुठलाही, तर तुम्ही हा जेव्हा हा एंटर नाही ते करता बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू हा. व्हॅल्यू मॅच करण्यासाठी ते हे होतं. येस 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 इन केस समजा फक्त कधी असं होऊ शकतं की एखाद्या वेळेस की त्या ठिकाणी नंबर असेल पण कोणीतरी मॅन्युअली त्या ठिकाणी त्याला टेक्स्ट मध्ये हे केलेलं कन्वर्ट केलेलं मे बी पॉसिबल होतं. होऊ शकतो ते आपल्याला ते पॉवर क्वेरी मधून आपल्याला अगोदर स्टार्टिंगला येस डेटा येस मॅच तो तुम्हाला करून घ्यावा. एरर किंवा तो देईलच ना, तर त्यावेळेस आपण त्याला करू शकतो. ओके ठीक आहे. ओके थँक्यू सर. ओके